Hello everyone. In the previous class we have covered trigonometric ratios, trigonometric identities and problems based on them. We solved 6.1, practice at 6.1, and now we are moving to one part of the chapter that is called application of trigonometry. Application of trigonometry, in other terms we can say it height and distance. How tall buildings and the trees, their shadows, like the length of the shadows or the height of the building, all these things can be measured with the help of trigonometry. So we are going to solve practice set 6.2 in this video. So stay with me, be keen to learn. Let's start with the class. And I'm directly going to jump into the question numbers, because here we are not going to use trigonometric identities. We are only going to use trigonometric ratios and their values, and we'll solve all the 6 problems of practice set 6.2. Let's start with the first problem. Question number 1 says, a person is standing at a distance of 80 meters from a church looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर ये चर्च है, इमेजिन दिस लाइन एज अ चर्च हियर, ओके. सो सपोज ये चर्च है एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च. मतलब चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पे, चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पे अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट इट्स टॉप. मतलब सपोज करो अगर आप यहाँ पर हो, सरफेस पे हम कंसीडर करते हैं कि आप सरफेस से लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पर हो तो और आप टॉप पे लुक रहे हो, देख रहे हो चर्च के टॉप पे, मतलब कि यहाँ से इधर से कहाँ पर दिख रहा है, चर्च के टॉप पे. तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, दिस इज 45 डिग्री. दिस इज नथिंग बट द 45 डिग्री. नाउ इफ आई गिव इट अ नेम, आई कैन से इट AB is the church and BC is the distance between the church and the person. We have to find the height of the church. That means this. So we can assume it as H. Okay. Now see how simple it is. You can simply write, let AB be the height of the church. AB be the church. Simply ऐसा. You can write it like that. Okay. So similarly here we have a right angle triangle. This is 90 degree. So we can write in right angle triangle, right angle triangle ABC. Since we are taking ABC, so ABC. So we just need to remember this PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. मतलब कि साइन कॉस टेन, जो भी रेशियो मैच करेगा हम कर लेंगे. तो यहाँ पर हमें ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया. सामने एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है. तो ऐसा कौन सा रिलेशन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का आता हो, दैट इज tan. यू कैन सी हियर PB tan में आता है. तो वी कैन टेक tan 45 will be equal to perpendicular upon base will be equal to, perpendicular is what, AB upon base is what, BC. So here we will get tan 45 equal to, sorry, we can directly put the values value only. So we can write tan 45 is nothing but 1. Tan 45 is 1. AB is H, BC is 80 meter. So since here you can write, since tan 45 degrees 1. So you get here, transfer this side. So you will get H equal to 80 into 1, that is 80 meter. So this your answer will be, thus the height of the church is 80 meter. So basically the distance and the height is same. It is just coincidence. Don't think कि answer same आता है, ऐसा कुछ नहीं है. It is just the coincidence because the angle is that only. Okay. I hope you understood it. We'll move to other questions. We'll solve other questions and we'll see how easily it can be solved. Okay. So don't worry. सारे questions अच्छे से solve करेंगे easy method से. ठीक है. Let's move to the second question now. Second question says, from the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes angle of depression. Depression दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब कि एक हाइट से नीचे की तरफ देखा जा रहा है. एलिवेशन का हो जाता है जब नीचे से ऊपर देखा जाता है. अगर एक आप हाइट पे और उससे नीचे देख रहे होते तो दैट इज डिप्रेशन.
60. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far is the ship from the lighthouse. Very simple. Let's just make the diagram. अगर डायग्राम सही बना है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप सही आएगा. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज प्रॉब्लम्स. नाउ लेट्स एज्यूम दिस एज द लाइट हाउस. ये हमारा लाइट हाउस हो गया. एज्यूम कर लेते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री. मतलब यहां पर अगर कोई बैठा है और वो शिप की तरफ देख रहा है, तो शिप इमेजिन करो यहां पर है, शिप यहां पर है, ठीक है. इमेजिन करो शिप यहां पर है, ठीक है. इमेजिन करो, राइट, ठीक है. अब ये शिप की तरफ देख रहा है, यहां पे ऐसे देख रहा है, ऐसे, ये राइट, ये देख रहा है. और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है डिप्रेशन. तो ये क्या है एंगल? 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक हाइट से नीचे की तरफ. और ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, यहां तक का. तो आपको पता है कि अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी ओनली, so what is the height of the lighthouse is 90 meter. This is 90 meter given to us. This is not given to us. We can consider it x, because how far is the ship from the lighthouse. मतलब ये शिप लाइट हाउस से कितना दूर है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, x फाइंड करना है. 60 डिग्री. अब बताओ, अल्टरनेट एंगल याद होगा, जो अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट एंगल्स बनाते तो दोनों सेम होते. तो ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. तो हमें ये एंगल पता चल गया. अब हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है. ए बी अज्यूम कर लोगे कि लेट ए बी द लाइट हाउस एंड सी बी द पोजिशन ऑफ द शिप. ओके, 1 second, I'll just write it. So now we have assumed the AB as lighthouse, C the position of the ship, and the distance between lighthouse and the ship as x meter. Okay, so how we solve it? We'll simply take it, the right angle triangle we have in right angle triangle in triangle ABC. Okay, ABC 60 degree we have, and we want x, we want base and perpendicular is given to us. We want base and perpendicular is given to us. That means PBP. So P and B का relation है perpendicular base, that is tan only. So we can simply write tan 60 degree, since 60 degree is given, this tan 60 as, तो क्या हो जाएगा? perpendicular. Perpendicular will be perpendicular upon base. So perpendicular will be AB and base will be nothing but the BC. Okay, clear है यहाँ तक? Now what is tan 60? Tan 60 is nothing but root 3. That's why in the question it is given root 3 as value of root 3 1.73. Root 3 equal to AB is 90 and BC we have to find x. Now simply x transfer this side and root 3 will come this side. So x will be 90 by root 3 divided by root 3. Now always rationalize, do not leave the base with the root. सो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है? हमें सिर्फ उसी नंबर को ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो यू कैन सिंपली राइट रैशनलाइजेशन. तो रूट थ्री से डिवाइड कर दिया हमने. सो दिस बिकम्स x इक्वल टू 90 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3. सो दिस विल बी नथिंग बट द x इक्वल टू 3 3 दैट इज 30 रूट 3. So you can write, if you want to put the value, you can put the value. So you can write it like this: x equal to 30 into what is the value of root 3? 1.73, and that will be nothing but the 31 and this 51.9 meter. So the height, the distance from the ship and the lighthouse will be 51.9 meter. That will be our final answer. Can you see how simple it is? सिर्फ एंगल देखना है हमें, और वी हैव टू फाइंड द रिलेशन. किसका रिलेशन? परपेंडिकुलर का है, बेस का है, बेस हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है. ये हमें 3 रेशियोज हैं, और भी 3 हमें पता है, इनको रिवर्स करने से आते हैं. वी जस्ट हैव टू फाइंड द किसका रिलेशन लगेगा, और वी जस्ट पुट द वैल्यूज, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व इट. सिंपल है काफी. लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन नाउ. 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meter. Okay, 2 buildings facing each other on a width of road 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter high, height building का दिया है, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? Okay, perfect. चलो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meter. मतलब कि अगर ये बिल्डिंग रहा, ठीक है, और दूसरा बिल्डिंग ये रहा, ठीक है, सो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो है, राइट, ये कितना है? 12 मीटर. Now first building is 10 meter high. मतलब let's assume this building as first. This building is 10 meter high. ठीक है. The height of angle of elevation. Sorry, the angle of elevation from the top of the second.
मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया फ्रॉम द टॉप, मतलब कि सेकेंड की हाइट ज्यादा ही होगी तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा ना। तो ये बेसिकली इतना हुआ, और ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। दिस इज व्हाट 60 डिग्री गिवन टू अस, गॉट इट। तो ए से जब बी की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो नीचे ए के टॉप से बी को देख रहे हो तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। नाउ दिस इज 12 मीटर, तो दिस विल आल्सो बी 12 मीटर, like parallel line only. This is 10, so this will be 10 meter only, and we have to find the value of this. हमें बेसिकली हाइट ऑफ द सेकेंड, तो मतलब बेसिकली हमें सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज हमें इतना ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ सिंपल इट इज, कितना जल्दी अच्छे से करना है, ठीक है। सो हियर मैंने क्या लिखा है, गिवन लिख लिया, ए बी सी डी आर टू बिल्डिंग्स, ए बी 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, विड्थ ऑफ रोड इज 12 मीटर। क्लियरली वी कैन सी, यहां पर क्लियरली क्या है हमारा कि दिस क्लियरली ए बी पी डी, ओके, नॉट सी डी, ए बी पी डी। सो ए बी पी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हुआ। अब रेक्टेंगल को पता है आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी विल बी इक्वल टू पी डी, दैट इज 10 मीटर, एंड ए पी विल बी इक्वल टू बी डी, दैट इज 12 मीटर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। 10 मीटर ऑलरेडी ये वाला पता है, हमें सिर्फ कितना फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, सीपी। तो उसके लिए अब हम ट्रायंगल हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी सी, पी विल बी इन बिटवीन बिकॉज दैट मेक्स 90 डिग्री, AP is a triangle that is a right angle triangle, and we can see यहाँ पर 60 डिग्री है, बेस पता परपेंडिकुलर फाइंड करना है, CP इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर tan थीटा ही मिल जाएगा हमें, tan थीटा विल बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट वन। सो हियर वी गेट tan, this is nothing but the tan 60 degree is perpendicular upon base. What is perpendicular? CP, और base कितना है, AP. So we get here tan 60 is nothing but √3. CP is we have to find out. AP we know 12 मीटर, AP अभी अभी हमने किया ना, ये AP 12 मीटर हो गया, यहाँ पर ये AP 12 मीटर हो गया, राइट। So we get here is like CP will be equal to, just multiply them here, 12 into √3 meter, and if we convert this into, or and this is CP, total height of second building, total height of second building क्या हो जाएगा, total height will be CD, total जो टॉप पे है ना ऐसा है, जो आपका यहाँ पे P है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, CD। तो CD will be what, CP plus PD. Now CP is what, 12 √3, PD is what, this is 12, this is 12 √3 अभी भी मिल गया, तो 12 √3 plus 12, ओके। सो यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, ओके, सॉरी ये दिस इज नॉट 12, दिस इज 10 ओनली, सॉरी दिस इज 10, नथिंग बट दिस इज 10, ओके। सो हियर यू गेट मीटर, so CD equal to you get this, so therefore hence the height of second building is 10 plus 12 √3 मीटर। मैंने इसको बस अरेंज कर दिया है, so that's how you solve it. Can you see कितना सिंपल था, दिखने में थोड़ा सा टफ लगेगा बट सिंपल ही था, I believe it was simple only, okay. Now if you are finding it easier, we'll move to other questions and we'll see how easily we can solve them as well, okay. So let's move to the question number 4 now. Question number 4 says two poles of heights 18 meter and 7 meter are erected on ground. Erected मतलब सीधे खड़े हैं, ठीक है, सीधे हैं, two poles straight हैं. The length of the wire fastened at their tops, मतलब ऊपर से, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स जैसे उनमें वायर जाती है तो वैसा, in 20 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. Okay, this question is थोड़ा सा डिफरेंट, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एंगल फाइंड करना है इसमें. नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ओके. देखो ध्यान सुनना, पहला पोल एज्यूम करो 18 मीटर का है, सॉरी इट शुड बी स्ट्रेट, 18 मीटर पोल, ओके. लेट्स एज्यूम दिस इज एज 18 मीटर एंड लेट्स गिव इट अ नेम AB.
नाउ इसके एक कुछ डिस्टेंस होगी दूसरे पोल के बीच में, इसके और दूसरे पोल के बीच में, राइट? देयर विल बी सम डिस्टेंस, लेट्स एज्यूम दैट इज नॉट गिवन टू अस, ठीक है? दूसरा पोल लेट्स एज्यूम हियर as 7 meter because first is 18 so the second is 7. Okay, this is 7 meter and from the top of the first, okay, दोनों क्या है? अटैच्ड हैं, दोनों क्या है? The length of the wire fastened at their tops is 22 meter, मतलब दोनों की, ये जो टॉप हो गया ए का और ये सेकेंड वाले का जो टॉप है, ये दोनों फास्टेंड है, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो बेसिकली ऐसे समझ लो, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन्स मैं बना देता हूँ तो ईजी लगेगा आपको, ठीक है? हाँ, ये this is 22 meter given to us. Okay, so here we get like this was total 18, so we get points like इसको E point दे देते हैं, इसको A B C और इसको D point दे देते हैं अपन। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। मैंने कहा था डायग्राम अगर हमें समझ में आ गया तो then everything is going to be simple only. Okay, everything is going to be simple only. So first let's just write what is given to us. So I have written here कि ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स, द डिस्टेंसेस गिवन टू अस। अगर एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस अगर हमने इसे ज्वाइन कर दे तो हमें एंगल फाइंड करना, दिस थीटा वी हैव टू फाइंड आउट कि ये हॉरिजेंटल से, ये जो हॉरिजेंटल है हमारा, ये हॉरिजेंटल है, इससे ये थीटा कितना बन रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट। सो सिमिलरली वी कैन सी दिस एज अ रेक्टेंगल ओनली, तो इफ दिस इज 7 सो दिस विल ऑल्सो बी 7 ओनली एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए बी विल बी, टोटल ए बी विल बी ए ई प्लस ई बी, ठीक है? दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई हियर, ठीक है? ए ई प्लस ए बी एंड ए बी इज व्हाट 18 मीटर, बी ई जो ए ई वी हैव टू फाइंड आउट और ई बी इज गिवन टू अस 7 मीटर, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ई बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 मीटर। ये रेक्टेंगल है, सिंस रेक्टेंगल रहेगा तो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर ए ई कितना मिल जाएगा हमें? A will be 18 minus 7, so AE will be, this is 11 meter, ये क्लियर हो गया, 11 मीटर AE, so I'll just change the color, this is 11 meter now, this is 11 meter and we have to find this only, okay? EC फाइंड करना है हमें, ठीक है? मतलब EC सॉरी, हमें एंगल फाइंड करना है, हमें एक साइड गिवन है, हमें इतना ही चाहिए था, ठीक है? So let's move ahead. Now we can simply write in right angle triangle AEC। कहने का मतलब क्या है? कौन सा एंगल ले रहे हैं हम? ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है AE और C, ये जो ट्रायंगल है, राइट? तो इसमें थीटा फाइंड करना है, ठीक है? तो हमें क्या गिवन है? ए ई गिवन है, दैट इज परपेंडिकुलर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द थीटा एंड वी नो द हाइपोटेनियस, दिस हाइपोटेनियस वी नो। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन किसका होता है? पी बी पी एच एच बी। किसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस? ये होता है साइन कॉस थीटा का रिलेशन होता है, पी एंड एच का रिलेशन साइन थीटा देता है। सो वी विल टेक नथिंग बट द साइन थीटा ओनली। कैन यू गेट इट? मैंने क्या बोला, साइन थीटा कैसे आया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन ही ले रहे हैं, ठीक है? सो वी विल राइट यहाँ पे साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? ए ई, हाइपोटेनियस इज व्हाट? ए सी, ठीक है? तो साइन थीटा हमें फाइंड करना है और ए ई इज व्हाट? अभी फाइंड कर ले 11 मीटर, ए सी इज व्हाट? 22 मीटर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज 1/2 कट होकर, ये 11 1 जा 11 2 जा, तो दिस इज 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है साइन थीटा का कि जब वो 1/2 हो जाता है? किस वैल्यू पे 1/2 होता है साइन थीटा? किस पे होता है? साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो यहाँ पर बेसिकली थीटा इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो किससे आ जाएगा? 30 डिग्री। गॉट इट? मैंने क्या किया? सिर्फ कंपेयर कर दिया। साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे 1/2 होता है। गॉट इट? So thus like angle made by the wire will be with the horizontal 30 डिग्री। इतना ही सिंपल था। याद रखना कि आपको क्या किया मैंने कि बस ये जो दो बिल्डिंग्स थे ऐसे एज्यूम किया, इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिया, इसके टॉप से यहाँ तक का एंगल थीटा लिया और बस ये एंगल फाइंड करना था। हमें ये वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू गिवन थी, तो इसका रेशियो हमारा साइन थीटा आ रहा था, हमने सिंपली वैसे ही कर दिया। तो सिंपल है काफ़ी।
Let's move to the next question. I hope you are all are understanding and finding it easier till now. Okay. So question number 5. Here we go. A storm broke a tree. Okay. At the tree top rested 20 meter, and at the tree top rested 20 meter from the base of the tree. Makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Okay. ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, मे बी वॉट एवर, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सपोज करो कि एक ट्री है, सपोज दिस एज अ ट्री. ओके, नाउ लेट्स जस्ट कंसिडर इट लाइक ए. ओके, दिस ये ट्री है और ये क्या बोला कि ट्री एंड रेस्टेड, द स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड. ओके, ट्री टॉप रेस्टेड मतलब ये ट्री है, ये बीच से ऐसे टूट गया, सपोज यहां से टूट गया है, ठीक है, टूट गया, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया है, और ये जो ट्री टॉप है, ये जो लाइव पार्ट है, ये रेस्टेड है, मतलब ये नीचे आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है, और एंगल 60 डिग्री पे जा रहा है, बेस से एंगल 60 डिग्री, मतलब अगर इसको यहाँ पे कंसीडर करो ऐसे बेस, तो ये नीचे आ गया, मतलब कि ऐसे ट्री गिर करके ये पार्ट नीचे गिर गया, मतलब कि ये इधर पे आ गया, ऐसे, सॉरी, ये ऐसे हो गया है, और ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जो पार्ट है ये टूट करके ये ऐसे गिर गया है नीचे, तो ऐसे टिक गया है, राइट, जो ट्री ये इतना पार्ट बचा हुआ है इस पे आकर टिक गया है, राइट. तो लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट बी, लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट एज डी. दिस इज गिवन 20 मीटर, रेस्टेड एट 20 मीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस 20 मीटर दे दिया फ्रॉम द बेस, बेस से कहा ना, बेस से ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 मीटर दे दिया, ठीक है. पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. देखो हाइट ऑफ द ट्री मतलब टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल, राइट, और अभी हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन एंड देन विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज कि AC टोटल ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है, AC टोटल, ये पूरा AC ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री है, इतना पूरा, जिसमें से AB पार्ट टूट करके किसमें BD पे, BD जो है AB का टूटा हुआ पार्ट है वो नीचे गिरकर D पे रेस्ट कर रहा है फ्रॉम द बेस, दैट इज C. तो CD कितना है 20 मीटर और एंगल BDC क्या है 60 डिग्री, ठीक है. सबसे पहले हम क्या फाइंड करना है, हमें दो चीजें फाइंड करनी है, या तो हमें BD मिल जाएगा, तो जो ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है AB विल बी इक्वल टू BD ओनली ना, क्योंकि AB ही टूट करके नीचे BD बन गया है गिरकर, राइट, और BC मिल जाएगा, तो हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ध्यान से देखना, ट्री इज कितना हो जाएगा AC, दैट इज AB प्लस BC, ठीक है. अब AB क्या है, BD है, AB जो टूटा हुआ है वही तो BD नीचे आकर रुका ना, ये मत सोचो कि AB छोटा दिख रहा है BD बड़ा दिख रहा है, नहीं, AB और भी है, मैंने बस डायग्राम में इतना इस तरह बनाया है, ठीक है, ये हो जाएगा. तो हमें यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी, क्या, हमें BD फाइंड करना है और BC फाइंड करना है, राइट. तो पहले हम एक करके BC फाइंड कर लेते बिकॉज ये एंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है. तो लेट्स डू दैट. विल टेक ट्रायंगल BCD, we can take the triangle BCD. Okay, so let's do that. In right angle triangle BCD, okay, BCD tan 60 मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देख सकते हो एक बार और फिर से, परपेंडिकुलर क्या है BC है और बेस क्या है CD है, ठीक है. तो यहाँ पर BC upon CD, so tan 60 is what, √3. so this is BC कितना है, फाइंड करना है BC हमें, और CD हमें 20 मीटर ऑलरेडी गिवन है, राइट. तो यहाँ पर से BC आ जाएगा हमारा, BC ये ट्रांसफर होगा इस साइड मल्टीप्लाई में, तो 20 √3 विल बी द BC. लेट्स एज्यूम इट इक्वेशन नंबर 1, लेट्स बॉक्स इट, ठीक है. अब ऑल्सो, अब देखो अभी हमें दूसरा हाइट क्या चाहिए, अब हमें चाहिए BD चाहिए. अगर हमें BD मिल जाएगा तो हम रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्री मिल जाएगा, हमारा हाइट मिल जाएगा. सो विल राइट ऑल्सो. और BD कैसे मिलेगा, BD कैसे मिलेगा, बेस पता है हमें, बेस पता है, और क्या चाहिए हमें, हाइपोटेनस चाहिए. तो PBP HHB किसका रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेनस का किसका रिलेशन होता है, कॉस का. तो वी कैन टेक कॉस 60 डिग्री equal to base upon hypotenuse, that is CD upon hypotenuse कितना है BD.
तो यहाँ पर cos 60 कितना होता है 1/2, दिस इज cos 60 इज 1/2, CD कितना है 20 है, और ये BD, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 20, सो BD विल बी 40 मीटर। तो BD जो टूटा वाला पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का, राइट, वो मिल गया हमें BD एस 40 मीटर। नाउ वी नो हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री ये कितना हो जाएगा, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, दैट इज AB, ठीक है, प्लस BC, AB प्लस BC, और AB क्या है, नथिंग बट द BD ओनली, जो टूटा वाला पार्ट था, और BC, ठीक है। तो BD कितना आया 40 मीटर आ गया, और प्लस BC कितना आया था 20√3 आया था, एंड दिस विल बी आर मीटर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट हियर, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, got it? So therefore thus the height of the tree is 40 plus 20√3 मीटर। देखा कितना इजी था, बिल्कुल टफ नहीं था। आई होप यू फाउंड इट इजियर, ट्रस्ट में बिल्कुल टफ नहीं था। बस हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था कि जो टूटा हुआ पार्ट है, अगर वो ऊपर से टूटा हुआ है, राइट, उसका जो हाइट होगा वो नीचे, वही पार्ट नीचे गिर के लगा होगा, तो उस तरीके से करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड आई होप यू आर फाइंडिंग इट इजियर, okay, and understanding it completely. This is also easier only. Let's understand this as well. A kite is flying at a height of 60 meter, मतलब नीचे से, ground से 60 meter from the ground, okay, above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. मतलब आप देखते हो हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म में होता है. It makes an angle of 60 degree with the ground. With the ground मतलब elevation. Assuming that the string is straight, find the length of the string. Easy ही है. सपोज ये काइट की हाइट हो गई, ये ग्राउंड से हाइट हो गई काइट की, ठीक है, कितना है 60 मीटर हाइट पे काइट उड़ रहा है। सपोज ये A और ये B, फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, सॉरी, फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। नाउ ये एंगल दिया हुआ हमें, एक सेकेंड, दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 60 degree. This angle is given to us as 60 degree, right? This angle is given to us as 60 degree from the angle of elevation. अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये काइट हो गई, ये काइट हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, धागा हो गया, बस यही फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सी कितना इजी होने वाला है, ठीक है। लेट्स जस्ट राइट द गिवन पार्ट फर्स्ट। नाउ so I have written AB is the height of the kite from the ground, C is the position of the string जो kite से attached है, और इसका लेंथ कितना है x मीटर एज्यूम कर लिया, AB 60 मीटर given to us, angle 60 degree is given to us. So simply we can write in right angle triangle, कौन सा right angle triangle हमारा, ABC, ओके। देखो यहाँ पर हमें x चाहिए, 60 गिवन है 60 डिग्री पे, तो मतलब कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है इनमें से, ये देता है पहला वाला, एंड दिस इज नथिंग बट द साइन थीटा ओनली। तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ इन प्लेस ऑफ साइन थीटा वी विल टेक 60 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री इज गिवन टू अस, तो विल टेक साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर कितना है AB और हाइपोटेन्स कितना है AC। बस अब सिंपल सा हो गया, साइन 60 की वैल्यू हमें वी ऑल नो दैट इज √3/2, साइन 60 इज √3/2, AB इज 60 मीटर गिवन है, AC ही तो फाइंड करना है x, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, सो √3 × x विल बी 60 × 2, यहाँ पर x विल बी क्या हो जाएगा, √3 को ट्रांसफर कर दो वापस, तो 2/√3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 120/√3, सिंपल है, राइट। बस रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज के बिना नहीं भूलना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो चाहो तो, रेशनलाइज ऑन रेशनलाइजिंग
ऑन रेशनलाइजिंग, ओके, लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करना मतलब कि वही रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, मतलब 120/√3 है इंटू √3 अपॉन √3। सो हियर यू विल गेट x इक्वल टू 120√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 विल बी 3 ओनली। सो दिस विल बी नथिंग बट कटे आएगा, ये 40 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 40√3 एंड दैट्स हाउ वी डू इट। यहाँ पर वी हैव द वैल्यू ऑफ गिवन एज x का √3 का, तो 40 इंटू 1.73 इज द वैल्यू ऑफ √3। सो x विल बी मल्टीप्लाई करा दो सिंपली, कितना मिल जाएगा, लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई, दिस इज 69.2 मीटर, ओके, and thus the length of the string will be 69.2 meter. So did you all see how simply and easily we could solve all the questions of the practice set 6.2, and that's how we have to solve only. That is the only way, okay, not only but easier way. सिर्फ डायग्राम सही बनाना है, एंगल सही लेना है, वैल्यूज जो गिवन है वो पुट करना है और सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर एंगेजिंग, दिस वाज 6.2 प्रैक्टिस 6.2। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन डिस्कस प्रॉब्लम सेट 6, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉब्लम सेट 6, जिसके सारे थोड़ा अगर टफ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई होप यू ऑल सॉल्व दीज क्वेश्चन अगेन, एक बार फिर से सॉल्व करो और ओके, एंड डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम सेट 6। तो होमवर्क इज प्रॉब्लम सेट 6 के जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड है, सॉल्व दोज क्वेश्चंस ओनली, ओके। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू सो मच।